Okay, so now we are continuing with the same session. Now when we are talking about a sample, it also requires few essentials. So essential का मतलब क्या होता है कि एक sample को हम तभी कहेंगे कि वो एक अच्छा sample है जब उसकी जो minimum requisition है वो उसको fulfill करता हो. सो इस तरीके के कुछ चार essentials हैं जो मेरे दिमाग में है कि जब भी आप एक sample choose करेंगे अपनी study के लिए तो आप उन चार चीज़ों का ध्यान रखें. पहला, that it is supposed to be a good representative. So the first essential when we described, it is described as representativeness. Representativeness का मतलब क्या हुआ, मैं आपको अभी पिछली वीडियो में बता ही रही थी कि जब हम एक पूरा पॉपुलेशन में से एक छोटा सा पार्ट सैम्पल की तरह पिक करते हैं, so basically we are picking up because we don't have time to explore the entire population. Now when we are using or when we are choosing this sample, we are considering that the inferences that we'll be making out from this sample will be representing the entire population. So it has to be a good representative because the results will not be biased if it is a good representative. The second essential is that it need to be homogeneous as well. Homogeneity जो कि एक second representative second essential है इसका, उसका मतलब क्या होता है? Homogeneous का मतलब होता है similar. Now when we are talking about a population and we are picking up one part and from that part we are making an inference, so it is definitely important that one, it should be a good representative, but two, that it should be homogeneous in nature. अगर आप एक सैम्पल चूज़ कर रहे हैं और उस सैम्पल से आप इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हैं तो वो उसी तरीके का, उसी सिमिलर नेचर का होना चाहिए जिस तरीके का पूरा एक पॉपुलेशन है. और सेम सैम्पल में भी जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर होने चाहिए, तभी आप एक स्टडी कंडक्ट कर पाएंगे. Then after we talk about the homogeneity and representativeness, the third point that we have to take care is about adequacy. Adequacy का मतलब होता है adequate enough. Adequate means sufficient. सो अगर आप एक पॉपुलेशन में से एक छोटा सा पार्ट सैम्पल की तरह पिक कर रहे हैं, सो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो एक करेक्ट प्रपोर्शन है जिससे हम एक इन्फ्रेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट नीड टू बी अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन. सो एडिक्वेसी का मतलब ही ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर सेइंग दैट द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एट प्रेजेंट इज़ 1.3 करोड़. सो और 1.30 करोड़. सो अब 1.30 करोड़ में से अगर आप सिर्फ मान लो 13,000 लोगों को एक सैम्पल में रखते हो तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव, नीदर इट इज़ एडिक्वेट. क्यों? क्योंकि हम उसमें से जब हम एक प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं तो जो एक सैम्पल है वो तो बहुत ही छोटा हो गया. अब मान लो आपकी क्लास है और आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स में से अगर आपने 10 का सैम्पल लिया तो फिर भी वी कैन से दैट इट इज़ एडिक्वेट. व्हाई? बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग a population of 100 students and you have picked up 10% of the entire population as sample. So yes, proportionately satisfying the conditions. And the last one which we are saying is that it should be independent. So independence is another feature, another essential of what do we call that essentials of a sampling. Why do we say this? Because independence का मतलब है जब हम एक sample choose कर रहे हैं उसमें से हमने जब पूरी population में से एक first participant लिया या first element लिया, जिसको हम economics में element use करते हैं usually, so जब हम second element उसमें choose करने लगे हैं तो वो first और second के बीच में कोई भी interdependence नहीं होती, which means one is independent of the other. So having said this, it means that the choice or the chances of one element being selected does not depend upon the chance of selection of the other element in the same group. So this is another point which we have to keep in mind. So ये थे वो चार essentials जो कि जब आप एक sample choose करते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना है कि क्या वो एक करेक्ट सैम्पल रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चारों एसेंशियल्स उसमें प्रेजेंट हों.
मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब भी अगर आप घर में चावल बनाते हैं, जब आपकी मदर राइस कुक करती है, तो राइस कुक करने से पहले ये देखने के लिए कि क्या वो राइस आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं, तो वो ये नहीं कि पूरे चावल को एक साथ खा के देखेगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। सो वो क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, दे जस्ट पिक 2-3 ग्रेन्स ऑफ दैट राइस टू सी दैट व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द राइस। कभी जब वो खरीदते हैं मार्केट से, तो वो पूरा एक साथ नहीं खाते। वो कैसे खाते हैं, वो थोड़ा सा देखते हैं। सेम वे इफ वी सी दैट व्हेन वी बाय पीनट्स, सो वी डोंट ईट द इंटायर पीनट्स ऑफ दैट शॉप, व्हाट डू वी डू, वी पिक अप 2 or 3 एंड उसमें से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो पूरा सैम्पल, जो पॉपुलेशन है वो कैसा होगा। सो इसी को कहते हैं सैम्पल। सो सैम्पल एंड पॉपुलेशन इज़ नथिंग not only related to economics and statistics or education, rather it is related to the day-to-day life activities. So I hope आपके लिए ये पॉइंट भी जो है वो यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि आप इकोनॉमिक्स को हर जगह रिलेट कर सकते हैं। आप घर से स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके से आप मार्केट में जब आते हैं, सो इस आप ये देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ एवरीवेयर, रिवॉल्विंग अराउंड यू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये समझ आया हो कि एक सैम्पल क्या होता है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, तो फिर आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।